quiet on the set. Can we please have quiet on the set? Awesome! I came to play. There's a price to pay. I came to say goodbye to the good old days. I came to play. WrestleMania was awesome, just like Fist of Dash and Dawson. But don't let that sound go down, because ladies and gentlemen, it's time for Raw and SmackDown. Welcome to WrestleFan, and this is Nikunj Walia, and you're watching My Road to WrestleMania, the ultimate fan experience. A worldwide stage. So guys, लास्ट 3 पार्ट्स में आपने देखा कैसे मैं दिल्ली से यूएस से आया, क्या क्या मेरी फेस्टिविटीज में एक्सपीरियंसेस रहे, रेसलमेनिया एक्सेस, WWE हॉल ऑफ फेम और रेसलमेनिया 35 का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। बट रुकिए, अभी शो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब बारी है द शोज आफ्टर रेसलमेनिया 35, जो कि है WWE Raw and WWE SmackDown. So guys, let's open up chapter 4, the shows after WrestleMania. अप्रैल 8, 2019 को था मंडे नाइट रॉ का शेड्यूल, और पिछले 3 इवेंट्स में मैं बहुत लेट हो चुका था, तो इस बारी मैंने सोचा था कि सबसे जल्दी पहुंच जाऊंगा, और मुझे सुपर स्टोर पे काम था, तो मैं बहुत ही जल्दी निकल गया था न्यू जर्सी से, और वहां से चीजें लेने के बाद मेरे को वहीं से एक फ्री शटल मिली जो कि सीधा ले गई बार्कलेज सेंटर। और गाइस, ये तो मजा ही आ गया, कुछ पैसे नहीं खर्च करने पड़े और फ्री में बार्कलेज सेंटर तक राइड मिल गई। और मुझे याद है कि मैं मंडे नाइट रॉ के लिए 2 घंटे पहले पहुंच चुका था, क्योंकि मुझे था इस बारी लेट नहीं होना है, टाइम से पहले पहुंचूंगा। और उस टाइम भी बहुत सारे फैंस आ चुके थे और बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे थे, बाहर घूम रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे। और जब बार्कलेज सेंटर का दरवाजा खुला और मैं अंदर बैक स्टेज अरीना की तरफ आया, तो पहले मैंने कुछ खाने पीने के लिए लिया, और फिर कर्टन के थ्रू मैं आया अरीना के अंदर, जहां पे मंडे नाइट रॉ का पूरा अमेजिंग सेटअप था और सीट्स वगैरह लगी हुई थी। तो मैं आयल से नीचे उतर रहा था, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के लिए मेरी सीट काफी अच्छी थी, जो कि 4th रो में थी, और मैं नीचे उतरते उतरते भी इंस्टाग्राम लाइव पे सबको अपडेट दे रहा था। Today I'm back in Barclays Center for Monday Night Raw, and today my seats are pretty decent, so it's gonna be fine. He'll take care of you, hon. Go down to 14 and What other residents are you with him? Yes, thank you. She's 6. Okay. Okay. It's always the best when the one is Oh wow, this close. So I'm this close to the ring, and this is pretty awesome. So now I can see all the wrestlers up close and personal, and you can see the WWE fans are already so excited. They're really awesome. Tonight, Monday Night Raw, the Raw after WrestleMania, the craziest crowd that can be expected. WWE Universe gonna go all crazy and personal, and it's gonna be pretty awesome. So let's see what turns up tonight at Raw. And this is me. I'm on my seat. I'm on the floor level, and I'm very close to the ring. Wow, man, this is so pretty awesome. Now today I need to have Zoom. Today I can just see all the action live right in front of me. That's gonna be super awesome. Wow. I guess I spent some good money. Cheers to that. That's the entire audience sitting around. Baby! I don't know what's with the Adam Cole. People crazy about Adam Cole. He's a great wrestler in NXT. But I know that he's this popular that every day they're going to scream Adam Cole and they just say baby. So Monday Night Raw is about to begin in a few while, and I'm pretty hoping that's going to be a great experience because I'm sitting up close and personal. Wow man, can't believe it. शो की शुरुआत होने से बिल्कुल पहले मैं रिंग साइड के पास पहुंच गया और फटाफट अपनी अच्छी फोटोज खिंचवा ली बिल्कुल रिंग के पास, और फिर उसके बाद मैं अपनी सीट पर बैठा और मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा से हो गए, बिल्कुल वो नॉन ट्रेडिशनल रेसलिंग फैंस जो कि पूरी दुनिया से आते हैं रेसलमेनिया के आफ्टर शोज के लिए। मैं उनका पार्ट था और मैं बहुत एक्साइटेड था। तो शो शुरू हुआ था WWE मेन इवेंट का, और उसमें जिंदर महल की रेसलिंग थी, और मुझे याद है कि मैंने वहां पे इंडिया का फ्लैग ऐसे होस्ट करा हुआ था, और समीर सिंह ने देख के मेरी तरफ ऐसे इशारा किया था और मैंने उसको ऐसे थम्स अप किया था।
तो मेन इवेंट में सिर्फ जिंदर महल का मैच था और फाइनली फिर मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई और पहला सेगमेंट था सेथ रॉलिंस और कोफी किंगस्टन का। मुझे याद है जब सेथ रॉलिंस आए थे तो मैं कितना एक्साइटेड था बिकॉज आई वाज रियली हैप्पी ही वॉन द यूनिवर्सल टाइटल। Kiss your boys, the New Day! उस सेगमेंट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, विनर टेक ऑल। और हम सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अभी तो दो नए चैंपियंस बने और अब फिर एक ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाला है। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे उस मेन इवेंट के लिए। मंडे नाइट रॉ की कुछ की मोमेंट्स जो मुझे अच्छे लगे थे वो थी जैक राइडर और कर्ट हॉकिंस रिटेनिंग द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। बेली और एलेक्सा ब्लिस का मैच बहुत अच्छा था। ऑल्दो साशा बैंक्स उस दिन के बाद से बहुत टाइम के लिए गायब हो गई थी और मैं उसे क्लोजली नहीं देख पाया था, जो कि मेरा मिस हो गया। और भी मोमेंट्स जो थे वो थी कर्ट एंगल की फेयरवेल स्पीच। फिर कर्ट एंगल की धुलाई हुई थी क्योंकि लास्ट सलवन डेब्यू किया था, उसने कर्ट एंगल को अच्छे से पछाड़ा था। और एक और की मोमेंट जो था मुझे याद है डीन एम्ब्रोस का, जो कि अब जॉन मॉक्सली है, उसका लास्ट मैच था मंडे नाइट रॉ में जो मैंने देखा था। और उसमें याद है बॉबी लैशली ने उसकी भाई रेने यंग को इंसल्ट किया था और एम्ब्रोस वेंट मैड, मतलब उसे पीटे जा रहा था और फिर एंड में खुद टेबल पे पटका गया और फिर वो सेगमेंट वहीं खत्म हो गया था। तो काफी बैड एंडिंग थी एम्ब्रोस के लिए। एक और मेरा पसंदीदा मोमेंट जो था वो था बेकी लिंच को इतने पास से देखना। बेकी 2 बेल्ट्स बन गई थी क्योंकि वो रेसलमेनिया पे विनर टेक ऑल मेन इवेंट जीत चुकी थी। तो बेकी केम आउट एंड शी वाज डूइंग अ स्पीच। और गाइस एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, मैं और कुछ ग्रुप ऑफ फैंस हमने शुरू किया था बेकी 2 बेल्ट्स का वो चैंट, जो कि बहुत आगे जाके सिनोनिमस हुआ। सो यस, बेकी 2 बेल्ट्स का चैंट शुरू करने में थोड़ा सा हाथ मेरा भी था। एक मोमेंट जो कि मेरा मंडे नाइट रॉ का हाईलाइट था, जब अलायंस रिंग के अंदर था और वो अपना गिटार बजा रहा था और उसने जो कहा था कि द नेक्स्ट वन टू इंटरप्ट मी इज अ डेड मैन। एंड ये सुनने के बाद मेरा रिएक्शन क्या था ये देखिए। The next one to interrupt me is a dead man. इससे समझ आ गया था कि इट मींस द डेड मैन इज गोना कम एंड आई वाज लाइक डूड, वो इतने पास से दिखने वाला अंडरटेकर एंड देन द गॉन्ग वेंट एंड द अरीना वेंट नट्स।
अंडरटेकर का ये सेगमेंट बहुत ही अमेजिंग था. आई वॉज सो लकी टू सी अंडरटेकर फ्रॉम दिस क्लोज डिस्टेंस. अंडरटेकर का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बचपन से एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो रेसलमेनिया पे नहीं देख पाया उन्हें रेसल करते हुए, लेकिन इतने पास मंडे नाइट रॉ पे थोड़ा सा एक्शन तो देखा अंडरटेकर का एंड आई वॉज सो डैम हैप्पी अबाउट इट. शो के लास्ट के मोमेंट बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही फैन यूनिटी वाइज भी थे, क्योंकि लास्ट मैच था कोफी किंगस्टन वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर बोथ यूनिवर्सल एंड WWE टाइटल. बट ये मैच इंटरप्ट कर दिया गया था बाय द बार और उसके बाद फैंस were like shouting bullshit, what is this, we don't care, and then it was turned into a tag team match where Kofi and Seth versus the Bar. But crowd उसमें invested ही नहीं था, crowd was अपनी ही मस्ती में था. एक बहुत ही मजेदार मोमेंट जो वहां हुआ था कि बीच बॉल उड़ते उड़ते मेरी एक क्लोज सीट पे एक फैन बैठा हुआ था, उसके पास हाथ में आई और उसने आगे उछालने के बजाय फाड़ दी और उसने ऐसे मिडिल फिंगर सबको दिखाई. गाइस ये सेगमेंट आप जरूर देखिए. शो ऑफ द एयर जाने के बाद शील्ड के दोनों मेंबर्स सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज रिंग के अंदर थे एंड दे वांटेड टू गिव अ प्रॉपर फेयरवेल टू डीन एम्ब्रोस. और फिर डीन एम्ब्रोस भी आए थे और फिर दे वर रिकलेक्टिंग ऑल द मेमोरीज दे हैड इन ब्रुकलिन. और ये एक फ्यूचर मोमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इंडिया वापस आया था तो मैंने यही एपिसोड को दोबारा देखा था और आई कुड लिटरली स्पॉट माई सेल्फ इन द क्राउड ओवर देयर. सो मंडे नाइट रॉ में ये थे मेरे की मोमेंट्स. अगले दिन की ओर बढ़ते हैं जो कि थे रेसलमेनिया वीक का लास्ट शो व्हिच वाज स्मैकडाउन. April 9 रेसलमेनिया वीक का लास्ट शो जो कि था स्मैकडाउन. सो इस इवेंट के लिए भी मैं बहुत टाइम से पहले आ गया था और फिर आई रिमेंबर वहाँ थोड़ी बारिश हो रही थी और बहुत लंबी लाइन हुई थी और मैं बार्कलेज सेंटर की पीछे वाली एंट्रेंस से घुसा था और वहाँ पे मैंने एक चीज देखी थी कि कुछ साइंस कॉन्फिस्केट कर लिए गए थे. जैसे आई थिंक रिमेंबर CM पंक का साइन ले लिया गया था और AEW के किसी ने टी शर्ट पहनी थी वो भी उतरवा दी गई थी गाइस. तो बहुत ही मजे आ रहे थे देखने में कि अच्छा हाँ ये एक्चुअली में होता है जो हम जो डर्ट शीट्स वगैरह में सुनते हैं. तो मैंने लाइव देख लिया था वो. स्मैकडाउन के लिए मेरी सीट्स थी एंट्रेंस रैम्प के पास, वो भी आई थिंक 5th और 4th रो में ही थी. और वहां पर भी मुझे याद है पहुंचते ही मैंने कहा था चलो एक लास्ट लाइव सेशन कर लेते हैं, अपने सारे इमोशंस जो बचे हैं और ये शो भी खत्म हो जाएगा आज और रेसलमेनिया वीक भी खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले अपने थोड़े से इमोशंस और बाहर निकालते हैं और सबको एक स्मैकडाउन का लाइव स्नीक पीक देते हैं. Today is my last WWE event that I'm attending. Today is SmackDown Live and this is where I'm sitting. This time it's close to the ramp area where I can see most of the superstars come out to the entrance and still closer to the ring. It's quite the same seat that I had yesterday for Monday Night Raw. And today I'm really sad because today is my last day of attending my last wrestling event. And tomorrow is going to be my last day in New York City. So yeah, it's bittersweet, but it's okay. I'm going to make the most of tonight. And it's going to be pretty awesome. So let's see what SmackDown Live has up for me and for the entire WWE universe. Because so this entire week has been a monumental and a magical week for me. It has completely changed me. I have to say there are many thoughts and experiences that have come in my mind, and I've experienced a lot of great things being a part of something that I watch every week on TV, and to be a part of this great experience has been awesome. And I'm really glad that I spent all my money on this because this is a once in a lifetime experience that you can have. So let me show you around the arena. There's the ring, and that's pretty much the Brooklyn Barclays Center, and it's filling up with people, and it's going to be pretty awesome. And there's the entrance ramp where all the superstars will come out. So this is pretty good.
शो शुरू होने से पहले मुझे याद है मैंने न्यू डे के पैनकेक्स इतने पास से देखे थे, वो बिल्कुल सामने मेरे पड़े हुए थे, और मैंने उनके एक प्रोड्यूसर जो वहां पे काम कर रहे थे या एग्जीक्यूटिव, आई डोंट नो, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कैन आई प्लीज हैव वन पैनकेक बिकॉज़ आई कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, मुझे कहीं नहीं मिलेंगे और पता नहीं उनके फेंकने पे मिले ना मिले। तो ही वाज सो काइंड, उसने मुझे एक पैनकेक दे दिया। स्मैकडाउन के शुरू होने से पहले एक डार्क मैच था, वो बहुत ही अच्छा था, एंड आई रिमेंबर वो डार्क मैच किसका था, द लेट ग्रेट ब्रोडी ली हु पास्ड अवे रिसेंटली वर्सेस अनदर ग्रेट रेसलर इन EC3, both of the talents wasted by WWE. उनका मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, और आई रिमेंबर द क्राउड वाज रियली बिहाइंड ब्रोडी ली, एंड इवन आई वाज बिहाइंड ब्रोडी ली बिकॉज उस टाइम भी मुझे वो काफी अच्छा लगता था, बट इतना इन्वेस्टेड नहीं था, लेकिन अच्छा लगता था, ही वाज अ गुड रेसलर। स्मैकडाउन के मुझे कुछ गिने चुने मोमेंट्स याद है क्योंकि वो शो इतनी तेज जा रहा और वहां पे इतना कुछ इंटरेस्टिंग मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था कि मुझे एक कलेक्टिव मेमोरी याद हो, बट जो कुछ अच्छे मोमेंट्स थे वो थे कोफी किंगस्टन का ओपनिंग सेलिब्रेशन ऑफ बिकमिंग द WWE चैंपियन आफ्टर 11 years, and Kofi's family was just sitting just I think 2 rows ahead of me, and I could see them so happy, and Big E came and he was making those faces with Kofi's children. Let's go, Shane! उसके बाद शुरू हुआ था 205 लाइव, बट गाइस मुझे 205 लाइव में इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं उठ के चला गया था, और मुझे याद है बहुत सारे लोग भी उठ के चले गए थे 205, क्योंकि आई थिंक ज्यादा लोग देखते नहीं है। और बाहर निकल के एक बहुत अच्छा मोमेंट हुआ था जब आई सॉ दीस 3 गाइज हु वर जस्ट सिटिंग इन द फ्रंट रो ड्रेस्ड अप एज द न्यू डे, एंड आई सेड कि गाइज मुझे आपकी पिक्चर खींचनी है, तो प्लीज एक पिक्चर दे दो। तो आई क्लिक्ड अ पिक्चर ऑफ दोस गाइज। तो बस इस सब के चलते ही रॉ स्मैकडाउन की जर्नी भी खत्म हुई। मैं वापस ब्रुकलिन से न्यूयॉर्क की तरफ गया, न्यूयॉर्क से अपनी बस ली टू न्यू जर्सी, और पूरे रास्ते यही सोचा था कि यार जिस मोमेंट का इतना इंतजार था, जिसको इतना अच्छा जिया, वो खत्म हो चुके हैं। रेसलमेनिया वीक फाइनली केम टू एन एंड, and I was a little upset but also very happy कि I did this once in a lifetime experience, and I couldn't have asked for anything better, guys. It was magical. Magical is the word for this experience. So guys, that was it for my road to WrestleMania Chapter 4, the shows after WrestleMania. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और इस सीरीज को प्लीज ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि जो भी फैंस रेसलमेनिया देखने का ड्रीम रखते हैं वो इससे कुछ मोटिवेशन ले पाए, इससे कुछ इंस्पिरेशन ले पाए। और गाइज लास्ट पार्ट का इंतजार करें, क्योंकि इस पूरी जर्नी के बीचों बीच मैं क्या सोच रहा था, मैंने क्या सोचा, मुझे इस एक्सपीरियंस से क्या इंस्पिरेशन मिली, और कैसे मैंने अपना रेसलिंग ब्रांड शुरू करा, और फिर हमने क्या अचीव करा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ताकि आप भी अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कुछ मोटिवेशन ले पाए, कुछ इंस्पिरेशन ले पाए। सो गाइज, अंटिल द पार्ट 5 ऑफ माय रोड टू रेसलमेनिया, दिस इज मी निकुंज वालिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड कीप लविंग रेसलिंग गाइज।